हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़े विद शॉर्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 12 फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 12 फॉरेस्ट आर लाइफलाइन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। One evening, Bujo entered the park with an elderly person. He introduced him to his friend. Professor Ahmed was a scientist working in the university. The children started playing while Professor Ahmed sat on a bench in the corner. He was tired as he had participated in the Golden Jubilee celebration of the town. After a while, the children also came and sat around him. They wanted to know about the celebration. Professor Ahmed told them that after the cultural program, the senior people discussed the town's unemployment problem. A plan was proposed to put up a factory by clearing an area of the forest just outside the town. This would give the increasing population of the town and chance to get jobs. The children were very surprised when Professor Ahmed told them that many people had objected to this idea. This is because the forests serve as green lungs and water purifying system in nature. Professor Ahmed explained the children were confused. Professor Ahmed realized that the children had not visited a forest. The children also wanted to know more about the forest, so they decided to visit in the प्रोफेसर अहमद। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या बात है कि एक बार की बात है, जो बूजो है वो अपने फ्रेंड्स को क्या एक प्रोफेसर थे जिनका नाम प्रोफेसर अहमद है, उनको क्या इंट्रोड्यूस करा रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो सारे बच्चे थे वो वापस खेलने लगे और जो प्रोफेसर अहमद थे वो बैठ गए जा करके। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो प्रोफेसर अहमद थे वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि उन्होंने क्या पार्टिसिपेशन लिया था एक गोल्डन जुबीली में अपने टाउन में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बच्चे थे जब वो खेल चुके थे तो वो आकर के प्रोफेसर अहमद के बगल में बैठ गए और आकर के बोला कि आप हमें इस पार्टिसिपेशन के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी, इसमें डिस्कशन हुआ। तो अब यहाँ फॉरेस्ट में क्या एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी, तो इससे जो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वो सब क्या काटने जाएंगे। तो इन सुन के वो जो बच्चे थे उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए वो, और उन्होंने बोला कि क्यों फॉरेस्ट काटा जाएगा, क्यों पेड़ काटे जाएंगे, फॉरेस्ट तो हम लोगों को ग्रीन लंग्स देते हैं, पानी को प्यूरिफाई करते हैं, तो इनको क्यों करा जाएगा। तो जो हमारे प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि बच्चों ने कभी वहाँ फॉरेस्ट तो गए नहीं है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को क्या करते हैं, इनको फॉरेस्ट विजिट करा के आते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, विजिट टू अ फॉरेस्ट, यानी कि जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। वन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड अ फ्यू थिंग्स लाइक अ नाइफ, अ हैंड लेंस, अ स्टिक, अ नोटबुक एंड वॉक टुगेदर through a forest trail near a village. On their way, they met Tibu, a young boy of their age group of nearby village who was taking cattle for grazing along with his aunt. He was very agile, running here and there to keep the herd together. When he saw the children, Tibu also started walking along with them, while his aunt went on a different path. As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animal living in the forest. Tibu then took them to a place at a height to show them the broad view of the forest. Children were surprised because they could not see any land. The different treetops had formed green cover over the land. However, the cover was not uniformly green. The environment was peaceful and a cool breeze was blowing. This made children quite fresh and happy. While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise
from the top branches of the trees. Tibu told them to relax since it was a normal phenomenon here. Because of the children's presence, some monkeys and had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds. Often give this type of warning call to alert other animals. Tibu also told that many other animals like boar, bison, jackals, porcupine, elephants live in the deeper areas of the forest. Professor Ahmed cautioned children that they should not go deep into the forest. Bujo and Paheli remember that they have studied about forest forest as example of habitat in class 6. They could see now how the forest provide a home for many animals and plants. The land where the children were walking was uneven and covered with many trees. Tibu helped them to identify sal, teak, samal, shisham, neem, palash, fig, khair, amla, bamboo, kachar, Kachnar. Professor Ahmed pointed out that there are several other trees, shrubs, herbs, and grasses in the forest. The forest floor and the trees were also covered with different types of creepers and climbers. The sun was barely visible through the leaves of the trees, making it quite dark inside the फॉरेस्ट. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जैसे वो लोग जो बच्चे थे जो जंगल में विजिट किए, तो जंगल में विजिट करते ही क्या हुआ उनको कि वो धीरे धीरे उन्होंने उनको लगा कुछ सामान ले लिया जाए, तो उन्होंने सामान में क्या क्या लिया, एक स्टिक ले ली, एक नोटबुक ले ली, एक टॉर्च ले ली, ठीक है, टॉर्च लेने के साथ मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया. तो इतने सारी चीज़ें लेकर के, पानी लेकर के ये लोग कहाँ पहुँच गए, जंगल में पहुँच गए. जंगल में क्या हुआ कि जैसे वो एंटर करे तो वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम टीबू था. ठीक, तो वो क्या करता था, वो अपनी अपने जानवरों को क्या ग्रेस करा रहा था, चरा रहा था, ठीक है, बकरियां चरा रहा था, अपनी जो उसके शीप्स थी, गोट्स थे, उनको क्या ग्रेस कर रहा था. फिर जैसे उनको देखा प्रोफेसर अहमद और बच्चों को, तो वो उनको ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और वो अपनी आंट के साथ था, तो उसकी आंट जो थी वो दूसरे रास्ते चली गई और वो बच्चों के साथ आ गया. ठीक, आने के बाद क्या हुआ कि जैसे वो लोग चल रहे थे, तो जो हमारा टीबू था, जैसे हम लोग जंगल में पहुंचे तो जो टीबू था उन्होंने सिग्नल करा. टीबू ने कहा कि देख लो, देखो यहाँ पर पहुंच गए हो, यहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ मत करो, क्योंकि हम लोग आवाज़ करेंगे तो जो हमारे यहाँ पे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सब क्या होंगे, वो डिस्टर्ब होंगी. ठीक है, तो वो लोग बड़े शांति से चलने लगे. फिर क्या हुआ, अचानक से जो मंकी है वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए और जो हमारी बर्ड्स हैं वो सब वहाँ से उड़ गई. तो जो बच्चे थे उन्होंने बोला ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा, जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने बोला ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों को बंदरों ने देख लिया, तो बंदरों को लगा ये लोग इंसान आ गए, तो बंदर क्या करे, बंदर ऊपर भाग गए, पेड़ में हाई क्लाइंब कर गए, यानी कि तो पेड़ के थोड़े नीचे बैठे थे, अब वो क्या पेड़ के ऊपर चले गए, ऊपर जहाँ पे बर्ड्स थी. तो वहाँ पे जो बर्ड्स थी वो मंकीज को देख करके क्या वहाँ से उड़ गई. तो ये एक टाइप का सिग्नल भी होता है, जैसे जिसमें जो जंगल में अदर एनिमल्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स, वो दूसरों एनिमल्स को क्या अलर्ट कर देते हैं. ठीक है, वार्निंग दे देते हैं, अलर्ट कर देते हैं. तो ये करके क्या जो हमारे बच्चे थे वो क्या आगे बढ़ गए. वो आगे बढ़े तो उन लोगों को क्या बहुत सारे क्या ट्रीज दिखाई दिए, जैसे कि नीम का, शीशम का, सेमल का और बैम्बू का, कृष्णार का. तो इतने सारे ट्रीज देखे तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे. तो जो प्रोफेसर अहमद थे और जो हमारा लड़का जो था वहाँ पे टीबू, उसने क्या इनको क्या मदद करी इनको ये सब समझाने में. तो अब हम लोग क्या एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, अपनी एक्टिविटी 12.1 इसे स्टार्ट कर लेते हैं. ऑब्जर्व द वेरियस थिंग इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द forest. You might have seen wooden items on your list like plywood, fuel wood, boxes, paper, matchstick, and furniture. Do you know that gum, oil, spices, fodder for animals, and medicinal plants are also some of the products which we get from the forest? Based on the products that we get from plants, try to fill table 12.1. One example of each plant is already given. Fill in the table by the adding more examples. Sheila wondered who would have planted
these trees? Professor Ahmed replied that in nature trees produce enough seeds. The forest floor provides favorable condition for them to germinate and develop into seedlings and spelling and saplings. Some grow up into trees. He added that branchy part of a tree above the stem is known as crown of the tree. Professor Ahmed asked children to look up and observe how the branches of the tall trees look like a roof of the other plants in the forest. He told them that it is called a canopy. तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप लोगों को क्या करना है, अपने घर में जाकर के क्या करना है, अपने घर में जाकर के ये ऑब्जर्व करना है कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो किसकी बनी हुई है, वो वुडन की बनी हुई है, जो कि वुडन की बनी हुई है, या फिर जो उन चीज़ों की बनी हुई है जो कि कहाँ से, जो कि फॉरेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट है। तो आप लोगों के आंसर होंगे कि अलमीरा, टेबल्स, चेयर्स, बेड, फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, ठीक है, कबर्ड्स, ये सब क्या, ये सब किसके बने हुए हैं, प्लाईवुड से किसके बने हुए, लकड़ी के बने हुए, ये सब किसके हैं, फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट है। तो ये हैं, लेकिन आपकी सोच के परे यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि गम हो गया, ऑयल हो गए, स्पाइसेस हो गए, फॉडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स हो गए। ये सारी चीज़ें भी क्या फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट होती हैं। तो ये सब बच्चों ने क्या सोचा। फिर क्या हुआ कि एक बच्ची थी शीला, उसने कहा कि शीला ने कहा कि यहाँ पर जंगल में तो यहाँ पर हज़ारों पेड़ है, 10,000, बहुत सारे हज़ारों सैकड़ों हज़ारों पेड़ हैं। तो इनको लगाया किसने होगा, इतने सारे पेड़ों को किसने लगाया होगा, किसने प्लांट करा होगा। तो जो हमारे प्रोफेसर अहमद थे, उन्होंने बोला कि इन्हें किसी ने भी प्लांट नहीं करा, इन्हें किसी भी ने नहीं लगाया, ये नेचर ने अपने आप हुआ है। और ये इस तरीके से इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ जो एक पेड़ लग जाता है, फिर उससे जो बहुत सारी जो सीड्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्या गिरते रहते हैं उसके फ्रूट से, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो जैसे सीड डिस्पर्सल, तो ये सीड डिस्पर्सल होता रहता है, जो कि हम लोगों ने क्या अभी आगे के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ था। तो उससे सीड डिस्पर्सल होकर के क्या बहुत सारे पेड़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग गए। तो ऐसे क्या यहाँ पर लगता है। फिर प्रोफेसर अहमद ने ये बताया कि जो हमारा ट्री होता है, ट्री के जो ऊपर का पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, उसको कहा जाता है क्राउन, यानी कि वो ट्री का क्राउन होता है, यानी कि जो पेड़ का ताज तो नहीं बोलेंगे लेकिन उसको क्राउन बोलेंगे, ठीक है। तो जो पेड़ होते हैं इनका वो टॉप जो होता है वो क्या होता है, क्राउन शेप का होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्राउन कहा जाता है, ठीक है। और जो हमारा पेड़ होता है, प्रोफेसर अहमद ने ये बताया बच्चों को कि जो एक बड़ा पेड़ होता है, वो पेड़ क्या करता है, वो दूसरे छोटे छोटे प्लांट्स को क्या वो एक तरह की रूफ प्रोवाइड करता है धूप से, ठीक है। तो इनसे क्या करता है कि उस जैसे एक कोई बड़ा पेड़ है, वो क्या छोटे छोटे प्लांट्स को क्या धूप से मतलब कि उनके ऊपर छत बना कर रखी हुई है उसके ऊपर, तो उसको कहा जाता है कैनोपी, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब हमारी एक्टिविटी 12.2 है, इसे भी क्या हम लोग स्टार्ट करते हैं। विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड, ऑब्जर्व द ट्रीज एंड try to identify them. You can take the help of some elders or books on trees. List the characteristics of the trees that you observe, such as the height, shape of leaves, crown, flower, and fruits. Also, draw the crowns of some trees. Professor Ahmed pointed out that trees had crowns of different types and sizes. These had created different horizontal layers in the forest. These are known as stories. Giant and tall trees constitute the top layer, followed by shrubs and tall grasses, and herbs formed by the lowest layer. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो प्रोफेसर अहमद थे, उन्होंने ये बताया कि जो क्राउन होता है पेड़ का, वो बहुत डिफरेंट टाइप का होता है और बहुत डिफरेंट टाइप के साइज का भी होता है, ठीक है। कुछ पेड़ों में क्या ये एक हॉरिजॉन्टली बनता है और कुछ में क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टली ये जो कैनोपी होती है ये बन जाता है उसका क्राउन। तो उसको कहा जाता है क्या, अंडर स्टोरीज कहा जाता है। जो बहुत बड़े और टॉल ट्रीज होते हैं उनकी जो टॉप लेयर होती है वो किससे, श्रब से बनी हुई होती है, जो ग्रास होती हैं, और जो हर्ब्स होती हैं उनसे क्या लोएस्ट टॉप्स बनी हुई
होती हैं। अब ये अंडर स्टोरीज और कैनोपी क्या है, तो देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ में देखिए, ये जो कैनोपी है ये क्या कर रही है, उनको दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या ऐसे एक टाइप की रूफ बना रखी है, छत बना रखी है। और लेकिन अगर आप ये छोटे से प्लांट के देखेंगे, ये क्या है, ये अंडर स्टोरीज है, ठीक है, इसको अंडर स्टोरी कहा जाता है। वुड वी सी similar kind of trees in every forest? Asked Bujo. Professor Ahmed said no. Due to different climatic condition, there are variation in the type of trees and other plants. The type of animal also differ from forest to forest. A few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flowers of shrubs and herbs. They had a close look at a bushes. While doing that, their hair and claws had seeds and thorns clinging to them. They came across numerous insects, spiders, squirrels, ants, and various other small animals on the bark of the tree, plants, leaves, and one decaying leaf on the forest floor. They started making sketches of these creatures. The forest floor seemed dark colored and was covered with a layer of dead and decaying leaves, fruit, seeds, twigs, and small herbs. The decaying matter was moist and warm. Children picked up various seeds and leaves off for their collection. Walking over the dead leaf layer on the forest floor was like walking over a spongy carpet. Is the decaying matter always warm? Professor Emma suggested that children could perform an activity to get an answer to this क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे चिल्ड्रंस थे, हमारे नहीं, जो यहाँ पे चिल्ड्रंस थे, वो जब चल रहे थे तो वो क्या देख रहे थे कि जो हर्ब्स है, श्रब्स हैं, यहाँ पे क्या जो बटरफ्लाइज है बहुत ज़्यादा फ्लटरिंग कर रही हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे उड़ रही हैं, वहीं पे जा कर के बैठ रही हैं। और जो हमारे ये जो बच्चे चल रहे थे, तो इनके चलने में क्या हो रहा था कि जहाँ ये चल रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी जगह थी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जो जगह थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, स्पॉन्जी थी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत सारा डेड और डिकेइंग मैटर पड़ा हुआ था, जो कि सैप्रोट्रॉप्स, जो कि इनको डिके कर देते हैं। सैप्रोट्रॉप्स क्या है, ये सब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जो सैप्रोट्रॉप्स था, ये क्या इसकी वजह से क्या होता था कि यहाँ पे जो डेड डिकेइंग मैटर था वो यहाँ पे आ जाता था, जिससे क्या होता था कि ये एक टाइप की कैसी लेयर बन जाती थी, ये एक टाइप की हमारी एक टाइप की कैसी बन जाती थी, एक स्पॉन्जी स्पॉन्जी सी क्या हमारी बन जाती थी। अब यहाँ पर क्या होता था कि जो हमारा ट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा, ये जो फॉरेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो हमारा ऑक्सीजन है उसको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर लेते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है उसको आउटटेक करते हैं, जिससे यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि ह्यूमस, decomposers। तो आइए पढ़ते हैं। प्रोफेसर अहमद asked children to pick up leaves from the forest floor and observe them under a hand lens. They found tiny mushrooms over the decaying leaves. They also saw an army of tiny insects, millipedes, ants, and beetle on them. They were wondering how these organisms live there. Professor Ahmed explained that apart from these animals, which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in the soil. Paheli wondered that mushroom and other microorganisms eat. Professor Ahmed replied that they feed upon the dead plant and animal tissue and convert them into a dark colored substances called humus. In which layer of the soil would you find humus? What is the importance of the soil? The microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers. The microorganisms play an important role in the forest। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को ह्यूमस और किसके बारे में पता चला है, ह्यूमस और डीकम्पोजर्स के बारे में हम लोगों को क्या यहाँ पर पता चला है। अब वो कैसे क्या काम करते हैं, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या एक हमारा जंगल है। जंगल में क्या हुआ कि जो हमारे जो बहुत सारे
जो प्लांट्स होते हैं, मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो क्या, जब वो धूप पड़ती है तो वो क्या ख़त्म हो जाते हैं। तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो प्लांट्स को क्या खाने लगते हैं, जैसे कि सेप्रोट्रॉप्स हो गया। तो इनके खाने के बाद क्या कर लेते हैं कि वो इनको क्या जब ख़त्म कर देते हैं तो वो क्या, वो ह्यूमस में कन्वर्ट कर जाते हैं। और जो ह्यूमस होता है उस वो सॉइल की फर्टिलिटी रेट को क्या बहुत ही ज़्यादा क्या बढ़ा देता है। और फर्टिलिटी रेट बढ़ने का मतलब कि यहाँ पे जो हमारी अ, पेड़ उगने की क्षमता वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ह्यूमस तो प्लांट से भी बनता है, और साथ ही में ये ह्यूमस किससे बन जाता है, ये ह्यूमस बनता है जो एनिमल मर जाते हैं, ठीक है। एनिमल के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे भी क्या ह्यूमस बनता है। इससे क्या होता है कि जो यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज फॉरेस्ट होते हैं, अगर उनको ह्यूमंस इंसान के द्वारा अगर डिस्टर्ब ना किया गया तो वो क्या बहुत ही ज़्यादा क्या बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रिप्लेनिश कर लेता है फॉरेस्ट तुरंत को। डिकम्पोजर हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोथ प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। देयरफॉर द फॉरेस्ट इज अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी full of life and vitality. It was about afternoon, and the children wanted to go back. Tibu suggested another route for going back. While they were going back, it started raining. However, surprisingly, they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly. The uppermost layer of the forest canopy intercepted to flow the raindrops, and most of the other was coming down through the branches and then stem of the trees from it leaving it। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारा प्लांट्स है, यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट्स हो है, तो प्लांट्स में क्या होता था कि ये ह्यूमस बनाते थे। तो क्या होता था कि जो हमारे डिकम्पोजर्स होते थे, ये डेड और डिकेइंग मैटर को क्या फिर से उनको ख़त्म करके ह्यूमस में कन्वर्ट करके जो हमारी चीज़ें होती थी उनको वापस से सही कर दिया करते थे। तो इसे कहा जाता था DLE, ठीक है, डायनेमिक लिविंग एंटिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक लिविंग एंटिटी क्या होती है कि जैसे एनिमल या कोई पेड़ मर गया, ठीक है, तो डीकम्पोजर क्या करेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, खा जाएंगे। जैसे मशरूम्स उसमें लग जाएगी या उसे खा जाएंगे, ठीक। खाने के बाद क्या करेंगे, उसमें वो जो हमारे जो भी डेड मटेरियल होगा, डिकेइंग मटेरियल, उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। ह्यूमस में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, ह्यूमस पे कन्वर्ट करने के बाद वो जो ह्यूमस होगा वो उसको तो ऐसे ही रखा रहेगा, तो वो ह्यूमस जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, फर्टिलिटी रेट को बढ़ा देगा। फिर बाद में क्या हुआ, जो चिल्ड्रन थे वो वापस अपने घर में चले गए, ठीक। फिर बारिश होने लगी बीच में, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो बूंदे थी, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो उनके ऊपर डायरेक्टली नहीं गिर पा रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतने सारे घने जंगल, घने पेड़ थे जो कि क्या कर रहे थे, जो कैनोपी था उनको क्या प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक। फिर बाद में क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ काट काट दिए जाते हैं और वहाँ पे क्या बना दिए जाते हैं, फैक्ट्री बना दी जाती है, जो कि क्या करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्या पॉल्यूशन को क्या इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, इन्हें एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इफ फॉरेस्ट disappears, the amount of carbon dioxide in air will increase, resulting in the increase of the earth's temperature. Second, in the absence of trees and plants, the animal will not get food and shelter. Third, in the absence of trees, the soil will not hold water, which will cause floods. Fourth, deforestation will endanger our life and environment. Think what we can to do preserve our forest। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर फॉरेस्ट डिसअपेयर हो गए, यानी ख़त्म हो गए, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि ट्रीज़ के एब्सेंस में क्या होंगे, जो प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको क्या फूड नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर थर्ड, अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो जो सॉइल होगी वो क्या, वो सॉइल है वो पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, वो क्या वो नहीं रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्लड आ जाएगा, यानी कि सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या आता है कि डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फॉरेस्टेशन हट के डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब, जो एनिमल्स है वो सब मर जाएंगे, और यहाँ पे क्या ड्रॉट्स आ जाएंगे या फिर फ्लड्स आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ कीवर्ड्स उनको पढ़ लेते हैं। कैनोपी, क्राउन, डिकम्पोजर्स, डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमस, रीजनरेशन, सीड डिस्पर्सल, सॉइल इरोजन,
अंडर स्टोरी। तो इसके जो कुछ कीवर्ड्स थे वो भी हम लोगों ने पढ़ लिए। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।